Good morning, everyone. मेरे को StreamYard का लिंक दे। Good morning. Happy New Year to all of you. Happy New Year to this wonderful audience. I hope that this new year may bring happiness and prosperity to your life. Let's wait for a couple of minutes, then we will begin this session. Our session is सबसे पहले सेहत. I've sent you. Our session is सबसे पहले सेहत. I cannot see Facebook ना. Facebook link for It's my privilege to address this wonderful audience. Today we have an eminent personality, eminent and wise personality, speaker, Ma'am Manisha Bhandari Mishra, one who is health and nutrition expert. And our parents from Xavier World and other dignitaries, they are going to attend this session, that is health awareness and nutrition. Health awareness and nutrition of your child. सबसे पहले सेहत. We all have heard that quote that health is wealth. Undoubtedly, this is true. Really, health is wealth. Today, we have with our guest, that is Manisha Bhandari Mishra ma'am. My dear audience, let me address our guest, Manisha Bhandari Mishra ma'am, one who is health and nutrition expert. She got an experience of more than 20 years in the field of education and training. Good morning, Manisha ma'am. Welcome to this session. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Manisha Bhandari, so let me continue your introduction. Ma'am, her skills and her interests took her to the position of Vice President, Marketing of Trophic Wellness Private Limited. We are really honored, ma'am, to have you with us. And I think I must give a compliment to the parents of Xavier World that our parents, they are really good parents because they are going to attend this session. They are attending this session. So it's like a signal that how conscious they are, how alert they are for their kids. Because it's a common concern now these days. Moms are always concerned that my kid, my child, he doesn't take this veggies. He's always fascinated to junk food. So today, ma'am is going to help us that how we can fascinate this nutrition to our kids. And one thing, let me add one thing, that not only our kids, ma'am is so much concerned for the women also. So what I have heard in this introduction, that you think that women folk can make India the health. So thank you, ma'am. Once again, I welcome Manisha Bhandari Mishra ma'am on the behalf of St. Xavier World School, Bathinda. Thank you, ma'am. Thank you so much, Gagandeep ma'am, for this lovely introduction, and the pleasure is all mine to be here. We've been waiting for this session to happen for the past, I think, 15 days, and finally we are here. So I am extremely thrilled to be talking about certain things which is so close to our heart and which is our children. So today, I think, is it going to be a session only completely in English, or a mix of Hindi and English would be desirable? Ma'am, as you are convenient, like, so you can, yes, mix English, yes, English as well as Hindi. So I think it will be more convenient to our, yes, audience also. Fine. Sure. Thank you so much. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Gagandeep ji. Thank you so much.
So, I welcome all of you to this session, and we are going to be talking about certain very practical, easy, and everyday tips to improve the health of our kids. And I'm going to be starting with not the routine things which you would have heard that kids are picky eaters and fussy eaters, and this is don't force them to eat, and let them एक्सपीरियंस देयर हंगर, भूख लगे तभी खिलाइए, उसके बिना मत खिलाइए. इन सब चीज़ों पर तो आप आई एम श्योर बहुत लोगों से सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं. टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन समथिंग व्हिच इज वेरी बेसिक, एंड इफ योर चिल्ड्रन गेट इनटू द हैबिट ऑफ दीज बेसिक थिंग्स, it is going to help them throughout their life. So it's not only about being kids, it's also about how to grow up into healthy individuals. So if it's possible for you, I will request एक नोटबुक और पेन लेकर के आप बैठे. कुछ पॉइंट्स शायद आप नोट करना चाहेंगे, क्योंकि आज सुनने के बाद आई एम श्योर आप वापस भूल जाएंगे. एक बार रिविजन की जरूरत पड़ेगी कि कैसे क्या करना चाहिए. So, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हम घड़ी के हिसाब से चलते हैं, we sleep, we wake up, we go to school, or we do our things based on a clock, a 24-hour clock. So whether you're feeling sleepy or not, if it's like 9 o'clock or 10 o'clock, we know it's time for us to sleep. तो क्योंकि हमारी शरीर की घड़ी इसी तरह काम करती है, हम उसकी तरह से काम करते हैं. इसी तरह से हमारी शरीर की भी एक घड़ी है जो अपना काम करती है, और अगर आप उस शरीर की घड़ी के साथ अलाइन कर लेंगे तो इट विल बी वेरी easy for your child and for you to make your child healthy. आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा healthy रख सकते हैं अगर आप उसके साथ अलाइन कर लें. तो हम बात करते हैं कि वो घड़ी क्या है. आप नोट कर लीजिए, कुछ टाइमिंग्स मैं आपको बता रही हूँ. और इससे पहले हमारे हिसाब से जो हम जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, हमारे हिसाब से हेल्थ के 5 पिलर्स हैं. देयर आर 5 पिलर्स जिस पर हेल्थ काम करती है. पहला, एंड आई वुड वांट यू टू नोट दिस, food is first pillar. Of course, जो हम खाते हैं, that is the first pillar. Nutrition is the second pillar. Food और nutrition अलग करके क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा खाना और हमारा न्यूट्रिशन एक्चुअली अलग अलग हो गया है. जो हम खा रहे हैं उससे न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, इसलिए कुछ और खाना पड़ेगा जिससे न्यूट्रिशन मिले. इसलिए फूड इज सेपरेट, न्यूट्रिशन इज सेपरेट. थर्ड थिंग इज दी एक्सरसाइज. यस, बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी है जितनी बड़ों के लिए जरूरी है. सो द थर्ड थिंग इज एक्सरसाइज. फोर्थ बीइंग स्लीप. इस पर शायद आपने बहुत ज्यादा सोचा ना हो, मगर नींद एक बहुत बड़ा पिलर है हेल्दी रहने के लिए. एंड द फिफ्थ वन इज इमोशनल वेल-बीइंग. सो बिकॉज टुडे इट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल सेशन, वी विल नॉट बी एबल टू टच अपॉन एवरीथिंग, बट आई विल स्टार्ट विद द बेसिक हैबिट्स दैट आई थिंक आवर चिल्ड्रन शुड हैव. सो जो हमारी शरीर की जो घड़ी है वो कैसे काम करती है. एंड अगेन आई वुड वॉन्ट यू टू नोट दिस डाउन. रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे जो हमारी शरीर है उसका टाइम है नींद लेने का. यस, फ्रॉम 8 to 4, दैट इज हाउ आवर बॉडी क्लॉक वर्क्स. तो अगर और उस वक्त क्यों नींद लेने का टाइम है, उस वक्त बॉडी जो है वो आपकी हील कर रही है अंदर से. तो बच्चे की बॉडी भी रिपेयर कर रही है. अब आपको लग रहा होगा कि रिपेयर किस चीज के लिए, व्हाट रॉन्ग हैज गॉन इनटू द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर डे. बच्चे की बॉडी में बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स भी जा रहे हैं, बहुत सारे वेयर एंड टेयर भी हो रहा है. तो रूटीन वेयर एंड टेयर, मसल का वेयर एंड टेयर होता है, बोन का वेयर एंड टेयर होता है, ब्लड सर्कुलेशन का वेयर एंड टेयर होता है. सो वेयर एंड टेयर हर चीज का हो रहा है. बॉडी को रिपेयर होने की जरूरत है, और रोजाना अगर रिपेयर होती जाएगी तो रोजाना रहेगी हेल्दी. सो रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का टाइम है बॉडी की रिपेयर होने का. ये वक्त है नींद लेने का. जी हाँ, थोड़ा सा बॉडी की क्लॉक को एडजस्ट करवाना पड़ेगा. बच्चे यूजुअली, और आजकल क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो 10-11 बजे तक बच्चे सोते नहीं हैं और सुबह फिर उठते नहीं हैं, और उठते ही सीधा 8 बजे नहीं, और वो ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं. इमीडिएटली तो नहीं कर पाएंगे, मगर थोड़ा थोड़ा क्लॉक को आप अगर मूव करना शुरू करें, 4 बजे न सही तो भी कम से कम 6 बजे बच्चे अगर उठने की आदत डालें, तो जो 2 घंटे का पीरियड मिलेगा, दैट इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ गुड टू देयर बॉडी एंड टू द इमोशंस.
आगे आते हैं तो उसके बाद जो काम करती है घड़ी 8 से 4 बजे, रात को 8 से 4 बजे सुबह तक, जैसा मैंने आपसे कहा, सोने का वक्त है। इसके बाद 4 बजे से दोपहर में 12 बजे तक का वक्त जो है, दैट इज टू क्लीन द बॉडी। जी हाँ, ये अब आप बोलेंगे कि 8 घंटे का वक्त साफ करने के लिए, सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक। यस, सो द बॉडी क्लीन्स इटसेल्फ। न सिर्फ पॉटी जाना इज इम्पॉर्टेंट, बल्कि डिटॉक्स, कंप्लीट डिटॉक्स होना इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज द टाइम जब आप बच्चों को आदत डालें पॉटी करने की, बच्चों को आदत डालें एक्सरसाइज करने की, थोड़ा सा मूव करने की, और बच्चों को आदत डालें इस वक्त कम खाने की, या ऐसी चीज खाने की विच इज फाइब्रस इन नेचर। जैसे आप फ्रूट्स खिलाएं उन्हें, सुबह सुबह ब्रेड खिलाना, जो हमारे यहाँ ब्रेड खिलाना या पराठे खिलाना का एक जो कल्चर है, वो आप ना करें, बिकॉज ये सब बॉडी की डिटॉक्सिंग एबिलिटी, जो सफाई करने की एबिलिटी है, उसको वो खत्म करता है, कम करता है। ये सारी चीजें जो है बॉडी में जा करके, मैं आपसे बोलूं कि इट जस्ट सिट्स इन द बॉडी, इकट्ठी होती चली जाती हैं। तो ये जो सुबह का वक्त है, वो वक्त है आप बॉडी को साफ करवाने के लिए मेहनत करें। आप फ्रूट्स खिलाएं, ब्रेड और पराठा कोशिश करें कि आप 12 बजे तक कोई अन्न बच्चे के उसमें ना दें। और अभी तो बच्चे क्योंकि घर पर हैं, क्लासेस ऑनलाइन हैं, तो आपके पास और ज्यादा वक्त है बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखने का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दोपहर में 12 बजे से लेकर के और दोपहर में 12 बजे से लेकर के रात को 8 बजे का जो वक्त है, वो वक्त है बिल्डिंग का, यानी बॉडी को बिल्ड करने का, यानी टिश्यूज के ग्रो करने का। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड लुक एट गिविंग अ चाइल्ड 7 थिंग्स। और मैं ये 7 चीजें आपको बोल के बता रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप इन्हें नोट कर लें। पहला, प्रोटीन। दूसरा, विटामिन्स। तीसरा, मिनरल्स। चौथा, फाइबर। पांचवा, फैट। छठा, कार्बोहाइड्रेट्स। और सातवां, पानी। मैं फिर से रिपीट करती हूं। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। ये 7 चीजें आपको इस पीरियड में 12 बजे से 8 बजे के पीरियड में आपको उन्हें देनी है। फाइबर आपने सुबह दे दिया फ्रूट्स के रूप में, तो फाइबर आप थोड़ा कम कर सकते हैं दोपहर में 12 से 8 के बीच में, मगर उसके अलावा प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए। हमारा पूरा शरीर 70% से ज़्यादा प्रोटीन से बना है, बाल से लेके नाखून तक। तो हमें, और ग्रोइंग फेज जब है हमारे बच्चों का, तो उस वक्त उनके शरीर में प्रोटीन जाना ज़रूरी है, और 3 तरह का प्रोटीन जाना चाहिए। दैट इज़ सोय प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन एंड वे प्रोटीन, क्योंकि इन तीनों तरह के प्रोटीन का अलग अलग काम है हमारे शरीर में। विटामिन्स एंड मिनरल्स जाना बहुत ज़रूरी है। एंड एज आई हैड सेड, क्योंकि खाने में जो है हमें ये न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, इसलिए सप्लीमेंट के थ्रू देना ज़रूरी होता जा रहा है, अदरवाइज कमी बनी रहेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, एंड नो मदर वांट्स टू हियर दैट you are not giving a proper nutritious food to your child. I would like to take a few examples to just प्रूव और मेक यू अंडरस्टैंड गड़बड़ कहाँ हो रही है। क्योंकि भटिंडा पंजाब की बात हो रही है, वहाँ पर पराठे और स्पेशली सर्दियों के मौसम में मक्खन भर भर के आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे, उसके अलावा आपके यहाँ पर छोले भटूरे और लस्सी, बड़ा ग्लास लस्सी का, ये सब शायद बहुत कॉमन है। और हमें ये लगता रहा है कि अगर बच्चे ने 2 पराठे या 3 पराठे मक्खन वाले खा लिए तो इसका मतलब उसने बहुत हेल्दी खाना खा लिया। So I would like to tell you that और हमारे बॉस रेगुलरली ये कहते हैं हमसे कि बच्चा गोलू मोलू है doesn't mean बच्चा is healthy. So जब आप, पराठा is basically wheat
और जब आपने wheat is carbohydrate and this is it also has protein but it has a inferior quality of protein which is called gluten जो आपकी बॉडी में जाकर के चिपक जाता है। और आजकल जो आटा हम खा रहे हैं जो चक्की से पिसकर आता है या जो बाजार से आप रेडीमेड ला रहे हैं, चोकर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैदे जैसा बारीक आटा है। आप देखेंगे वो आटा जब आप ऐसे गूंद के रखते हैं तो वो खिंचता है। तो जो चीज बाहर ऐसी खिंच रही है वो बॉडी में जाकर के बहुत ज्यादा चिपकती है। तो 2 पराठे की जगह इफ यू कैन मेक अ पैनकेक, अ चीला आउट ऑफ बेसन और बहुत सारी उसमें सब्जियां डाल करके, तो आपने कुछ हेवी खिलाया मगर जो खिलाया वो न्यूट्रिशियस खिलाया। अगर हम सब्जियों की बात करें, सबसे पहले तो डलता है उसमें घी या तेल और उसके बाद सब्जियां इतनी देर तक हम पकाते हैं जब तक कि उसका घी तेल वापस ऊपर ना आ जाए। और जब घी तेल ऊपर आने का मतलब है उसके अंदर का पानी, न्यूट्रिशन सब कुछ खत्म हो गया, तब जाके तेल ऊपर आता है। तो वो सब्जी बच्चा कितनी भी खाएगा, फैट और कार्ब्स के अलावा उसके पेट में कुछ नहीं जा रहा है। तो विटामिन्स और मिनरल्स अगर आप मैं समझती हूँ खाने को बदलना बहुत मुश्किल है। सो आप अगर ये कंटिन्यू करें खिलाना, आप पराठा भी खिला रहे हैं और आप नूडल्स भी खिला रहे हैं और आप दाल मखनी भी खिला रहे हैं और आप छोले भटूरे भी खिला रहे हैं, मगर उसके साथ में आप एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जरूर ऐड करें बच्चे के रूटीन में, सो दैट उसको विटामिन्स और मिनरल्स का एक कवच बना रहे, एक कवच उसकी बॉडी को मिल जाए। इम्यूनिटी को हम सब ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है इस कोविड पीरियड में, और हम को ये समझ में आ गया है कि इम्यूनिटी बनाए रखना जरूरी है, बिकॉज कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए आपको अपने बच्चों को विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर, ये 4 चीजें, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, 4 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो देना जरूरी है। क्योंकि फैट, कार्बोहाइड्रेट और पानी तो हमारे रूटीन के खाने में बच्चों को मिलता ही है। फिर से हम घड़ी की बात कर रहे थे, शरीर की घड़ी की। फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन एक बार वापस हम बात कर लेते हैं। रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का वक्त है बॉडी को रिपेयर करने का, बॉडी को बिल्ड करने का। उस वक्त आप कोशिश करें बच्चे के पेट में कुछ भी ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा अग्नि, हीट हमारी बॉडी यूज करती है खाने को डाइजेस्ट करने में। तो अगर बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने में अपनी एनर्जी लगा लेगी तो बॉडी जो है वो रिपेयर करने के लिए एनर्जी नहीं दे पाएगी। तो आपको 8 से 4 के बीच में बच्चे की नींद का ध्यान रखना है, और बच्चे को आप कोशिश करें 8 बजे से पहले खाने की आदत डालें, 8 बजे के बाद खाना ना खाया जाए। तो 8 से 4 का वक्त है हील और रिपेयरिंग का, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक का वक्त होता है शरीर की सफाई करने का। पॉटी अच्छी तरह से आनी चाहिए। किसी दिन अगर बच्चे को पॉटी नहीं आई, आपका एंटेना खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब ये ना सोचें कि 2 दिन कॉन्स्टिपेशन है चल जाएगा, या ये तो रूटीन है, बिल्कुल रूटीन नहीं है। सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं कॉन्स्टिपेशन से, जड़ है कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारियों की। तो बच्चा अगर एक दिन पॉटी नहीं करता है, मेरा बेटा 21 साल का है, मैं आज भी उससे रोज पूछती हूँ पॉटी की कि नहीं की। तो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक दिन का भी नेग्लेक्ट ना हो। अगर आपके बच्चे को पॉटी नहीं आई तो प्लीज उस दिन आप उसे बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारा खीरा, टमाटर, गाजर, ये जो फाइबर वाली चीजें हैं वो ज्यादा खिलाइए, ताकि अगले दिन उसका पेट साफ होना जरूरी है। गर्म पानी पिलाइए, मगर किसी दवाई के साथ आपको उसको ट्रीट नहीं करना है, कोई भी आपको लैक्सेटिव नहीं देना है। पपीता खिलाइए, बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए। इसके बाद दोपहर में 12 बजे से लेके शाम को 8 बजे का वक्त है बिल्ड करने का। तो अच्छा खाना, बिल्कुल पौष्टिक हेल्दी खाना खिलाइए, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खिलाइए। एक आध सप्लीमेंट आप उनकी डाइट में ऐड कीजिए, सो दैट द चाइल्ड, जब खाने का वक्त है, बॉडी इज एक्चुअली रेडी टू एक्सेप्ट ऑल न्यूट्रिशन। जब बॉडी सोई अच्छी तरह से है, सुबह बॉडी साफ अच्छी तरह से हो गई है, तो वो जो दोपहर में 12 से शाम को 8 बजे का वक्त है, बॉडी इज वांटिंग न्यूट्रिशन, इट इज इन अ मोड ऑफ एक्सेप्टिंग न्यूट्रिशन। उस वक्त आप उससे बच्चे को अच्छा बहुत हेल्दी खाना खिलाइए, ताकि हेल्दी का मतलब, मैं बार बार हेल्दी का मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए खाने से नहीं है, हेल्दी से मतलब है न्यूट्रिशियस खाना आप खिलाइए, सो दैट बच्चे की ग्रोथ बेहतर हो।
सो ये मैंने आपसे एक बात कही। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ सिंपल हाइजीनिक चीजें आप दिन भर में फॉलो जरूर करें बच्चे के लिए। स्पेशली नींद से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज नींद पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमें लगता है ठीक है, बच्चे को जब नींद आई तब सो गया, जब बच्चे को स्कूल अटेंड करना है या कुछ करना है तो हमने जबरदस्ती उठा दिया। नींद से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप चाहें तो आप नोट कर लें। पहला पॉइंट, जब बच्चे का आप एक सोने का टाइम डिसाइड कीजिए। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जैसे सुबह 8 बजे स्कूल का फर्स्ट पीरियड होगा तो वो 8 बजे ही होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब आप उसे उठा करके स्कूल भेज देती हैं या आप उसे लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने क्लास के लिए बिठा देती हैं, बच्चे को पता है कुछ भी हो जाए मुझे आज 8 बजे की क्लास अटेंड करनी ही है। उसी तरह से बच्चे को पता होना चाहिए कुछ भी हो जाए, रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 8 बजे, जो आप डिसाइड करें, वो टाइम मेरे सोने का है, मुझे सोना ही है, कम व्हाट में। तो आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए और उस पर स्टिक करिए। उसके कम से कम आधा पौन घंटे पहले मोबाइल शुड बी आउट, लैपटॉप शुड बी आउट, टीवी शुड बी ऑफ। सोना अपने आप में एक संस्कार है, एक कल्चर है, जिसे आपको अभी से डालना पड़ेगा। तो टीवी बंद रखिए, माहौल बनाइए कि सोने का टाइम है। अगर आपका घर जो है थोड़ा म्यूजिक पसंद करता है तो कुछ लाइट मेडिटेटिव म्यूजिक ऑन करके रखें, अंधेरा करके रखें। बच्चों के कमरे में लाइट कम से कम हो, कर्टन्स लगाएं। अगर फिर भी लाइट आती है तो आई मास्क की आदत डालें, मगर सोना इज कंपल्सरी और अच्छा सोना चाहिए। तो बच्चे से जस्ट सोने से पहले प्लीज आप ये ना करें कल एग्जाम है तो हम आपका यू आर टेकिंग अ टेकअप बच्चों को। अगर आपको 8:30 सुलाना है तो 8 बजे से पहले आपको डिनर करवाना है, और आप डे को इस तरह प्लान कीजिए कि डिनर के बाद में बच्चा जो है वो बिल्कुल आप उसे मेंटली किसी चीज का प्रेशर मत दीजिए। पुट हिम इनटू अ मोड ऑफ स्लीपिंग। जब सुलाने की बारी आती है तो आप जो मैट्रेस है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। बच्चे को आप तकिए की अगर आदत डलवाना चाहते हैं, डिपेंड करता है, आप आदत अगर डलवाना चाहते हैं तो 3 तकिए बच्चे की बॉडी के नीचे होने चाहिए। एक गर्दन के नीचे बिल्कुल पतला, जो सिर्फ गर्दन की जो कर्व है उसको कवर कर रहा है। दूसरा बैक के नीचे, जो बैक में जो कर्व आता है उसको कवर कर रहा है। और तीसरा घुटने के नीचे। ये बिल्कुल पतले तकिए होने चाहिए। जो मोटे तकिए हमें लगाने की आदत है, जो पूरी गर्दन को और सिर को कवर करते हैं, वो आप कोशिश करें कि आप उसका यूज ना करें। और बच्चे को सोने से पहले एक लाइट शावर की आदत डालें कि वो गुनगुने पानी से, गर्म पानी से, मौसम के हिसाब से जो सूट करता है, एक शावर लेकर के सोए, ताकि बॉडी जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, आपके इमोशंस जो हैं वो नॉर्मल हो, और आपके इमोशंस जो हैं वो नॉर्मल हों। और 1 सेकेंड दीजिएगा। ये एक संस्कार है सोने से पहले नहाने का, जो आपको आदत डालनी चाहिए। दूसरी चीज, आप जब बच्चों को सुलाएं तो बिल्कुल ढीले कपड़े पहन करके सुलाएं, अंडरगारमेंट्स ना हो, दैट इज बेटर। बिकॉज प्राइवेट पार्ट्स का हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट पार्ट्स में हवा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑक्सीजन, द बॉडी पार्ट हैज टू ब्रीथ। और प्राइवेट पार्ट्स को जब हम पूरे दिन अंडरगारमेंट्स में एकदम कस करके रखते हैं, तो रात को भी अगर आप एकदम अंडरगारमेंट्स के साथ बच्चे को सुलाएंगे, तो चाहे लड़का हो या लड़की, आप आदत डालें बिना अंडरगारमेंट्स के सुलाने की। एक कुर्ता पजामा या बिल्कुल कॉटन का कपड़ा, नाइटी या व्हाटएवर, जो भी आपको ठीक लगता हो, पर कपड़ों के अंडरगारमेंट्स के बिना सुलाना उनकी हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों को उनके प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से क्लीन करना सिखाइए। ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। मैंने बहुत बच्चों को, मतलब बहुत लड़कियों और लड़कों को बड़े होने के बाद देखा है, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर प्राइवेट पार्ट्स, क्योंकि उनको हाइजीन का ध्यान रखना नहीं आता, किसी ने सिखाया नहीं। जब बच्ची छोटी है आपकी या बच्चा छोटा है आपका, आप जब उसे नहला रहे हैं
हैं तो आप अच्छी तरह से उसे सिखाएं कि पूरी तरह से साबुन के साथ अच्छी तरह से अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोना है, एनस को धोना है। ये मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक हेल्थ कोच की तरह आपसे बात कर रही हूँ, तो आप उसी तरह से उसी लाइट में इसको समझें। एनस एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूजुअली हम साबुन नहीं लगाते हैं, दिन में एक बार भी नहीं लगाते हैं। दैट इज द प्लेस जहाँ पर गंदगी इकट्ठी हो रही है, जहाँ पर वेस्ट हमारा जहाँ से निकलता है। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा बहुत बड़ी उम्र के लोगों को जो है पाइल्स की शिकायत और ये सब होने लगती है। वन रीजन इज ऑफ कोर्स कॉन्स्टिपेशन, द अदर रीजन इज अनहाइजीनिक हैबिट्स। तो बच्चों को आप अपने प्राइवेट पार्ट्स रोज सुबह शाम जब वो नहाएं तब धोने की आदत डलवाइए। प्लीज चेक, जब तक बच्चे छोटे हैं आप चेक करने की कंडीशन में है, चेक कीजिए कि सब ठीक तो है, वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार कुछ चीजें वहां फंगस डेवलप हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, आपकी नजर पड़नी चाहिए। और बच्चे को भी आप समझाइए, एनीथिंग अनटूवर्ड यू फील इन योर प्राइवेट पार्ट, इमीडिएटली आपको बताया जाना चाहिए कि ये हो रहा है। और अंडर आर्म्स को क्लीन करना रखना सिखाइए प्लीज, बिकॉज दैट इज अगेन वन एरिया जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जर्म्स क्रिएट कर सकता है, बीमारियां बढ़ा सकता है। तो ये कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जो यूजुअली आपको कोई नहीं बताएगा, कोई आपसे इन चीजों के बारे में बात नहीं करेगा। नाउ व्हेन वी आर कमिंग टू प्राइवेट पार्ट्स एंड स्टफ, एक और चीज़ जो मुझे लगता है हम इंडियन पेरेंट्स में बहुत बड़ी कमी है, हम सेक्स के बारे में, हम प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, हम बॉडी की ग्रोथ के बारे में हम अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं। तो बच्चा जो कुछ सीखता है, और आजकल बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि बच्चा नेट पे सीख रहा है, आपकी जानकारी के बाहर बहुत कुछ सीख रहा है, बहुत कुछ पढ़ रहा है, बहुत कुछ देख रहा है, बहुत कुछ सुन रहा है और अपनी मर्जी से उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर रहा है। तो जब बच्ची या बच्चा आपका 10-11 साल का हो जाए, आपको समझ में आने लगे कि ये बहुत सारी चीजें देख समझ रहा होगा, प्लीज ऐसा नहीं कि आप एक दिन बैठे और बोले आइए आज हम अपने बॉडी के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं करना है। रूटीन में मेंटेन अ वेरी हेल्दी टॉकिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप। बच्चों के साथ मस्ती भी कीजिए, बात भी कीजिए, उनसे पूछते रहिए क्या चल रहा है, बताते रहिए आप जब छोटे थे तो आप कैसा फील करते थे, ताकि बच्चा ओपन अप करे। और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा मेरा 21 साल का बेटा है, मैंने कभी भी उससे कोई चीज अगर मतलब उसको मैंने इतना ज्यादा सुना है, जब बच्चे छोटे होते हैं और जब वो बहुत बोलते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ी देर चुप हो जाएं, बच्चे बहुत बोलते हैं मेरे बच्चे। आप ऐसा चुप बिल्कुल ना करवाएं, बोलने दीजिए बच्चे को। वो चाहे आपसे आके बहुत स्टूपिड बात भी कर रहा है, करने दीजिए, क्योंकि ये आदत आगे जाकर के आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जब वो बच्चा आकर के आपको हर चीज बताएगा, ये भी बताएगा कि मुझे ये लड़की अच्छी लग रही है, ये बताएगा मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये बताएगा मुझे स्कूल में किसी ने बुली कर दिया। अभी क्योंकि बहुत चीजें ऐसी चल रही हैं, बच्चे डर जाते हैं, आकर आपको नहीं बताएंगे। आपको एक ओपन रिलेशनशिप रखनी है और ये सपोर्ट के साथ रखनी है, इस बात के साथ रखनी है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो जिंदगी में, पेरेंट्स एज पेरेंट्स आई स्टैंड बाय यू। ये एक उनको इस सिक्योरिटी के साथ बड़ा कीजिए कि एक जगह ऐसी है जहां तुम लौट करके आओगे तो सबसे पहले तुम्हें हग ही मिलने वाला है, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं आप बच्चों को बिगाड़ दें। जैसे मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, गलत करके आओगे तो सबसे पहले डांट मुझसे खाओगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रांगली खड़ी मैं ही रहूंगी तुम्हारे साथ में। सो ये कॉन्फिडेंस जब बच्चों को मिलता है ना, यकीन मानिए बच्चा कभी कोई चीज आपकी इंफॉर्मेशन के बिना नहीं कर पाएगा, वो करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि उसे जरूरत महसूस नहीं होगी। मैंने अपने बच्चे को एक ही सेंटेंस सिखाया था जब वो टीनेज में एंटर किया, और मैं वो आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप चाहें तो उसे यूज करें। मैंने उससे कहा, जो चीज तुम मेरे सामने कर सकते हो वो चीज है सही, जो चीज तुम मेरे सामने नहीं कर सकते वो चीज है गलत। सो इफ यू थिंक यू कैन स्मोक इन फ्रंट ऑफ मी, fine, it would be right. If you think you cannot ever smoke in front of me, say no I can't, that means it is wrong. So क्या standard क्या हो
मापदंड क्या हो, नापने का तरीका क्या है, यार्डस्टिक क्या है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, मैंने उसे यही यार्डस्टिक दी। जो तुम अपनी माँ के सामने कर सकते हो वो सही, जो माँ के सामने नहीं कर सकते हो वो गलत। सो उस चीज से उसने आज ये सिचुएशन है कि मुझे उसकी हर चीज पता होती है। वो अपनी अगर गर्लफ्रेंड से मिल रहा है, उससे बात कर रहा है, इनफैक्ट बहुत बार झगड़ भी लेगा उससे तो दोनों, गर्लफ्रेंड भी और वो भी, मेरे पास आते हैं सोल्यूशन के लिए, बिकॉज ही फील्स दैट ओनली माई मदर कैन अंडरस्टैंड मी द बेस्ट। तो ये एक बहुत खूबसूरत, आप फ्रेंडली रिलेशनशिप दीजिए अपने बच्चों को, डरा के मत रखिए, हर चीज के बारे में बात कीजिए। लड़कियों को स्पेशली आपको समझाने की जरूरत है कौन आपको कैसे देख रहा है, कौन आपको कहाँ टच कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट करना है। कुछ गलत हो जाए या किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की और उसके साथ डराया भी, तो डर के आकर के ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि वो डरे और आपको ना बताए। इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि अगर कहीं उसके साथ कुछ थोड़ा इतना सा भी गलत हुआ है, वो सबसे पहले आपको आकर बताए, या उसको अगर गलत एहसास भी हो रहा है तो वो आपको आकर बताए कि इस टीचर के साथ ठीक नहीं लगता, या इस बॉय के साथ ठीक नहीं लगता, या इन अंकल के साथ ठीक नहीं लगता, या सो दैट। और जब वो बताए तो प्लीज सीरियसली लीजिए, बच्चे का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, चुप मत करवाइए। दूसरी चीज, हम बच्चों की, लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू ऑल्सो, एक सेकेंड दीजिए मुझे। आई एम इन अ सेशन, आई कॉल यू बैक। बोल दो अभी आज नहीं होगा, मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, ओके, या सॉरी। सो हाँ, हम बहुत ज़्यादा बार ये बात करते हैं कि बच्चियां सेफ नहीं हैं हमारी कंट्री में, इतने केसेस हो रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, कहाँ भेजे बच्चियों को। मैं एक बेटे की माँ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटे के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है बेटियों के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इन द सेंस कि आप अपने बेटों को सिखाइए लड़कियों को रेस्पेक्ट करना। आप अपने बेटों को सिखाइए कि लड़कियों को किस नजर से देखना है। अगर आपने बेटों को सिखा दिया तो हमारी सोसाइटी 100% सिक्योर हो जाएगी। हमें अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जब ये वो निर्भया केस हुआ था, मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में था, और जब वो लौट कर आया और बहुत सारी चीजें सुन करके वो लौट करके आया, और उसने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा, व्हाट इज रेप? आप मुझे बताओ रेप क्या होता है। और मैंने बैठ करके बताया दैट व्हेन यू अब्यूज द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ गर्ल, दैट इज कॉल्ड रेपिंग। इफ आई डू समथिंग टू योर प्राइवेट पार्ट्स, हाउ विल यू फील? ही सेड आई विल फील वेरी हर्ट। तो मैंने बताया कि जब कोई ऐसा करता है लड़कियों के साथ तो दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग, और खुल करके बात कीजिए। उसको मैंने समझाया, तुम्हें चाहे कितना भी अपसेट महसूस हो रहा हो किसी की भी बात पर, तुम्हारी लेडी टीचर हो, तुम्हारी मदर हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी सिस्टर हो, तुम्हारी दूसरी फ्रेंड्स हो, यू विल नेवर एवर यूज एन अब्यूजिव लैंग्वेज। उन्हें गलत नजर से नहीं देखोगे, कोई गलत भाषा यूज नहीं करोगे, हर वक्त लड़की के साथ सिक्योरिटी की तरह रहोगे, सिक्योर करोगे उसको। हर एक को लगना चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ वो लड़की है तो उस लड़की को पूरी तरह से सिक्योर महसूस होना चाहिए। सो ये आप थोड़ा सा, मैं जितने भी आपके घर में मतलब जो भी बेटे के पेरेंट्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप अपने बेटों को प्लीज लड़कियों का रेस्पेक्ट करना सिखाएं। और वो तब होगा जब हम घर में, अपने घर में महिलाओं का रेस्पेक्ट करना सीखें। अगर बाय चांस आपके घर में ऐसा माहौल बन जाता है कि मदर को कुछ भी बोल दिया जाता है, या सिस्टर को, या वाइफ को, या किसी और लेडी को, तो प्लीज आप कोशिश करें इस तरह की बात ना की जाए बच्चों के सामने। उनके मन पे असर पड़ता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हम रियलाइज भी नहीं करते। एक बार हम लोग ड्राइव कर रहे थे और मेरे हस्बैंड ने एकदम से बोला कि पक्का ये कोई लेडी ड्राइव कर रही होगी आगे।
तो मैंने कहा ये कैसे बोला, तो बोला वो ढंग से ड्राइव नहीं कर रही है। तो मैंने कहा ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ढंग से कोई ड्राइव नहीं कर रहा तो वो लेडी होगी। तो और एक्चुअली वो लेडी नहीं थी जब हमने क्रॉस किया, मैंने कहा क्रॉस करके देखते हैं, वो लेडी नहीं थी। तो द पॉइंट इज कि जब आपने ऐसी बात कह दी, आपके दिमाग में है लेडी ड्राइव नहीं कर सकती, तो बच्चा जो साथ में उसने भी सुना, उसके मन में भी ये बैठ गया कि लेडीज ड्राइव नहीं कर सकती। अब ये आपको लगेगा जनरल स्टेटमेंट था, छोटा सा स्टेटमेंट था, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा परसेप्शन बच्चे के मन में क्रिएट कर दिया। वो जिंदगी में कभी आगे किसी लेडी को रेस्पेक्ट नहीं करेगा जब ड्राइविंग की बात आएगी, वो यही बोलेगा कि तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। सो और तब तक मैं ड्राइव नहीं करती थी। नेक्स्ट डे आई मेड इट अ पॉइंट, आई विल लर्न टू ड्राइव एंड आई विल शो माई सन दैट लेडीज ड्राइव बेटर देन, कैन ड्राइव बेटर देन मैन, और कैन ड्राइव इक्वली एज वेल एज मैन। सो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। बच्चों को डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं और चाइल्ड थेरेपिस्ट क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है आप क्या संस्कार बच्चों को दे रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम, कुछ और चीजों पर बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, कुछ सप्लीमेंट्स आपको अपने बच्चों की डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक कंपनी में, न्यूट्रीचार्ज नाम है उसका, और हम लोग जो है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड इमोशनल वेलबींग। जैसे इमोशनल वेलबींग पे मैंने आपसे बात की, एंड आई थिंक बच्चों के लिए इमोशनल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इमोशनल वेलबींग पे एक दो चीजों पर मैं और आपसे बात करूंगी। One is a physical hug, a physical intimacy with your kids at whatever age. उसको बना के रखिए प्लीज। सुबह उठ के हग करना, पूछना कैसे सोए, नींद कैसी थी। बच्चा अगर किसी चीज से डर कर आपके पास आता है, पहला आपका रिएक्शन होना चाहिए टू हग द चाइल्ड एंड कंफर्ट हिम। डरा हुआ है अगर, या उससे कोई गलती हो गई है, या बहुत बार मैंने घरों में देखा है कोई चीज अगर बच्चे के हाथ से गिर के टूट जाती है तो पेरेंट्स सबसे पहले बोलते बोला था ना, मत हाथ लगाओ, मत करो। आई थिंक बहुत गलत चीज है। बच्चा डर जाता है, सबसे पहली चीज आप कंफर्ट करें उसे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम मेरे पास आ जाओ। तो पहले उसे हक करें, कंफर्ट करें, उसके बाद बताएं कि बेटा ये करने से ऐसे हो गया, नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे। बच्चा अगली बार डेफिनेटली ध्यान रखेगा और डरेगा नहीं, और आपके को आकर के बताएगा कि ये हुआ पर मैंने ध्यान रखा। लेकिन सपोज कीजिए आपने बच्चे को डांट दिया और बोला ये साफ करो और हट जाओ यहाँ से, और अब तुम 2 घंटे पनिशमेंट है, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। अगली बार बच्चे से कुछ गलती होगी तो वो इतना डर जाएगा कि उसको लगेगा मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और ये चीज जाकर के जब बच्चा बड़ा होता है वो वही चीज अपने बच्चों के साथ करता है। तो प्लीज इमोशनली बच्चों को बहुत सिक्योर करके रखिए। ये सोचिए बच्चों के ऊपर आजकल हमसे ज्यादा प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, बाहर के माहौल का प्रेशर है, लॉकडाउन में रहना आसान नहीं है, हम परेशान हो गए हैं, तो बच्चों ने तो कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि हमें अंदर बंद होके रहना पड़ेगा। तो अब बहुत ज्यादा प्रेशर्स के साथ बच्चे जीते हैं, कह नहीं पाते हैं, पता ही नहीं होता कि कहें कैसे, क्योंकि वर्ड्स नहीं है उनके पास में उस तरह से बोलने के लिए। तो आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझें, और घर में एक थोड़ा सा खुशी का, एक एंजॉयमेंट का माहौल हमेशा बना के रखें। हल्का सा म्यूजिक चल रहा हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रही हो तो उसमें खुशी का माहौल हो। खाना भी अगर आप बना रही हैं तो यू शुड ऑल्सो पुट ऑन सम म्यूजिक सो दैट देयर इज अ लाइट एनवायरमेंट इन द हाउस ऑलवेज। ऐसा ना हो कि जंग, बाहर से आप आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है फिर से दूसरे जंग के मैदान में पहुंच रहे हैं। मैंने बहुत घरों में टेंशन्स पलते हुए देखे हैं और उसका असर बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है। कोशिश करें आपकी, आप टेंशन्स को सिर्फ अपने तक रखें और बच्चों को उसमें ना घसीटें। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ खाने को लेकर के। जब स्ट्रगल कर रही हूँ न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के, पहली चीज आप करें, हमारा एक सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज किड्स। अगर आप चाहें तो आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। मुझे ये सप्लीमेंट पर्सनली बच्चों के लिए इसलिए पसंद आता है क्योंकि आप जो भी हेल्थ ड्रिंक अपने दूध में मिला करके दे रही हैं, कुड बी एनी हेल्थ ड्रिंक दैट यू आर यूजिंग, आई होप आपने उसका न्यूट्रिशन लेबल पढ़ा हो कि वो जा क्या रहा है बच्चे के पेट में। ज्यादातर कंपनियां चीनी, आटा, एसिडिटी रेगुलेटर और
चॉकलेट ये मिला करके देती हैं। ये आप घर पर भी बना सकते हैं। 2 चम्मच आटा, 1 चम्मच कोको पाउडर, 2 चम्मच चीनी, बन गया आपका हेल्थ ड्रिंक। हमारा वाला जो हेल्थ ड्रिंक है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज किड्स, उसमें हमने डाले हैं 49 न्यूट्रिएंट्स, और ये कोई भी हेल्थ ड्रिंक 49 न्यूट्रिएंट्स नहीं डालता। इसमें से जैसा मैंने आपसे कहा 3 तरह की प्रोटीन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, सोय, वे और मिल्क, तीनों प्रोटीन इसमें डले हुए हैं। बच्चों के लिए कुछ पेट की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन हुआ नहीं, बच्चा बीमार होगा ही होगा। अगर पेट ठीक है तो बच्चा ठीक है। इनफैक्ट बड़ों के लिए भी लागू होता है। 2 चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक अगर चली शरीर में तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पहला, आपका ब्लड का सर्कुलेशन, अगर वो पूरी तरह से नॉर्मल और ठीक हो रहा है तो आप रहेंगे स्वस्थ। आप देखिए ब्लड का सर्कुलेशन जहां जहां पर रुका, ब्लड थिक हुआ कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो हार्ट पे प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट हुआ कहीं भी किसी भी बॉडी के पोर्शन में तो प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्लड स्लो मूव करता है तो प्रॉब्लम, ब्लड में कोई गंदगी आ जाती है तो प्रॉब्लम। सारा इश्यू कब होता है? जब ब्लड ढंग से सर्कुलेट नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज, जब आपका पेट ठीक से डाइजेस्ट करके डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा है आपकी बॉडी को, मतलब पेट खाने को पचाए भी और जो बिना पचा हुआ खाना, खराब खाना, मतलब जो अपशिष्ट जिसको बोलते हैं वो बाहर फेंक दे। दैट शुड बी, अगर ये 2 चीजें आपके शरीर में ठीक चल रही हैं तो आपकी हेल्थ रहेगी अच्छी। तो बच्चों का जो डाइजेशन है वो ठीक रहना चाहिए, और इसके लिए हमने इसमें डाले हैं 10 बोटैनिकल्स, 10 जड़ी बूटियां जो बच्चे के डाइजेशन को रखती हैं बिल्कुल ठीक। हमने डाला इसमें प्री और प्रोबायोटिक। आप आजकल प्री प्रोबायोटिक बहुत सुन रहे होंगे। कुछ ब्रांड्स हैं जो प्री प्रोबायोटिक के नाम पे आजकल बहुत ज्यादा एडवर्टाइज भी कर रही हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें टेस्ट किया हो तो उसमें चीनी बहुत ज्यादा है और चीनी बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो प्री और प्रोबायोटिक जो है वो गट हेल्थ के लिए, आपकी पेट के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो हमने इसमें डाले हैं। 2 फ्लेवर्स नहीं, टेस्ट में आता है। फ्लेवर्स में यूजुअली क्या होता है, हम सिंथेटिक कुछ डाल देते हैं तो वो फ्लेवर बन जाता है। यहाँ पे हमने ओरिजिनल कोको पाउडर डाला है, ओरिजिनल मैंगो पाउडर डाला है, अल्फांसो मैंगो, सो दैट उसकी भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे को मिले। तो एक टेस्ट है चॉकलेट, एक दूसरा टेस्ट है मैंगो, और आप इसको दूध में मिला करके बना सकते हैं। हम लोग स्मूदी की तरह प्रेफर करते हैं कि आप 1 ग्लास दूध लें, उसमें आप कोई भी बनाना, एप्पल, मैंगो, कोई भी सीजनल फ्रूट, जो पल्पी फ्रूट, गूदे वाला फ्रूट है वो डालें। साथ में आप 1 स्कूप न्यूट्रीचार्ज किड्स पाउडर का डालें, ब्लेंड करें, फर्स्ट क्लास टेस्टी मिल्क शेक बन जाता है। वो आप अपने बच्चे को पिलाएं तो आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, सबका न्यूट्रिशन, साथ में फ्रूट, साथ में दूध, एक बहुत हेल्दी ड्रिंक बन जाता है। अगर इसको, जो मैंने सुबह का वक्त बताया आपको, सुबह 4 से लेकर दोपहर में 12 बजे का वक्त है, बॉडी को साफ रखने का वक्त, साफ करने का वक्त, दिस इज द टाइम यू शुड बी गिविंग दिस हेल्दी ड्रिंक टू द चाइल्ड, सो दैट उसको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको फाइबर भी मिल रहा है, और उसके पेट में कुछ भी गलत खाने को नहीं जा रहा है। इसके साथ आप कुछ और फ्रूट्स बच्चे को खिला सकते हैं। आप ये दिन में 2 बार अगर देंगे, वेरी सून, दिस इज अ क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब ये हुआ कि हमने 100 बच्चों पर इसका स्टडी करवाया, और 100 की 100 बच्चों में ये पाया गया कि उनकी हाइट बढ़ी, उनका BMI बेटर हुआ, और उनकी जो वर्बल एबिलिटी है, बात करने की जो एबिलिटी है, वो बढ़ी। तो ये एक क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है। आप दिन में 2 बार अपने बच्चों को डेफिनेटली दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक लास्ट पॉइंट पे जो मैं बात करना चाहूंगी, जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, इनफैक्ट जब से हम कंसीव करते हैं, तब से बच्चों के शरीर में जो डेवलपमेंट होती है वो, मैं बोलूंगी, इरिवर्सिबल होती है। मतलब अगर मैं बहुत नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं, बच्चे के अंग बन रहे हैं हमारे मदर्स के वूम में। अगर बच्चे का अंग उसमें नहीं बना, वूम में नहीं बना, तो बाहर आकर बच्चे का अंग बनता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप उस बच्चे को वापस छोटा कर दें, अपने वूम में डाल लें, वापस से आप उसका वो अंग बनवा दें और उससे वापस आप डिलीवर कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो डेफिशिएंसी
वूम में रह जाती है वो परमानेंट होती है, इरिवर्सिबल होती है। उसको आप बच्चा जब डिलीवर हो जाए उसके बाद आप कितना भी न्यूट्रिशन दे दें, कुछ चीज़ें रिवर्स की ही नहीं जा सकती। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा वूम में बनता है, पूरा शरीर तो बनता ही है, साथ में 70% ब्रेन बच्चे का बनता है वूम में, और बाकी का बचा हुआ 30% बनता है डिलीवरी के बाद। 2 साल तक बनता है, 6 साल तक बनता है। 6 साल तक इनफैक्ट 95% ब्रेन बन चुका होता है। उसके बाद तो ब्रेन सिर्फ एक्टिव रहता है या ब्रेन का मेमोरी पावर बढ़ता है, बट डेवलपमेंट जो है वो 6 साल तक हो जाता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट आपके वूम में होता है 70%। और जिस तरह से आपको ये तो पता ही होगा कि मसल्स जो हैं वो मसल्स का खाना है प्रोटीन, उसी तरह से ब्रेन का खाना है DHA। एंड आई लीव इट टू यू, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, रोल ऑफ DHA, D फॉर दिल्ली, H फॉर हरियाणा, A फॉर अमेरिका। डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड बोला जाता है DHA। आप गूगल पे सर्च करें, रोल ऑफ DHA इन ब्रेन डेवलपमेंट, रोल ऑफ DHA इन चिल्ड्रन, रोल ऑफ DHA इन प्रेगनेंसी, रोल ऑफ DHA इन आई डेवलपमेंट। आपको गूगल सब कुछ खोल करके आराम से बता देगा। मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रही जो साइंटिफिकली रिसर्च नहीं है। तो DHA आपकी ब्रेन को और बच्चे की आंखों को, दोनों को बहुत मदद करता है डेवलप होने में। और उसके बाद में जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, बड़ा होने लगता है, तो उसकी मेमोरी पावर में और उसकी देखने की क्षमता में DHA बहुत मदद करता है। और DHA बहुत कम खाने की चीज़ों में होता है। जिन चीज़ों में होता है उन्हें हम रूटीन में रोज़ खाते नहीं है। जैसे आपको DHA अखरोट में मिलेगा, पर आप बहुत सारा अखरोट बैठ के खा नहीं सकते। DHA आपको फ्लैक्सीड में मिलेगा, लेकिन फ्लैक्सीड अगर आपने कच्चा खा लिया तो आपके मुंह में झाग हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, आपकी आंतों में जाकर चिपक जाएगा। और फ्लैक्सीड अगर आपने रोस्ट करके खाया तो उसका खाने का कोई मतलब नहीं है, उसका DHA आपने वैसे भी खत्म कर दिया। तो DHA जो है नॉन वेजिटेरियन कुछ चीज़ों में होता है, मगर हम नॉन वेजिटेरियन रोज़ नहीं खाते। और जिस तरह से हम पकाते हैं उसमें न्यूट्रिशन वगैरह तो सब उड़ जाता है, जो रह जाता है वो है घी, तेल, मसाले। आई एम श्योर आप लोगों में से जितने लोग भी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, आपको एक्चुअली टेस्ट नहीं पता होगा कि चिकन का टेस्ट कैसा होता है, या मटन का कैसा होता है, या किसी और चीज़ का कैसा होता है, क्योंकि हम इतने सारे मसालों के साथ बनाते हैं कि बाकी सारा टेस्ट हम खत्म कर देते हैं, बाकी सब न्यूट्रिशन हम खत्म कर देते हैं। तो DHA बच्चे को रोज चाहिए। प्रेग्नेंट अगर आप में से या आपके रिश्तेदारों में से कोई प्रेग्नेंट है तो आप प्लीज़ उन्हें कहें DHA लेना शुरू करें। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप वेजिटेरियन DHA ले सकते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन DHA ले सकते हैं। यूजुअली नॉन वेजिटेरियन DHA बहुत स्मेल करता है तो लेना थोड़ा मुश्किल है। हमारे पास वेजिटेरियन DHA है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज DHA। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज DHA 200 mg रोजाना आपको लेना चाहिए। अगर आपने जस्ट बच्चे को डिलीवर किया है तो भी आपको लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लैक्टेशन के फेज में, नर्सिंग के फेज में बच्चे को आप दूध पिला रही हैं तो बच्चे को दूध के जरिए DHA मिलना चाहिए। और अगर आपने लैक्टेशन जस्ट खत्म किया, नर्सिंग बंद की है, या आपने बच्चे को बाहर से ऊपर से खाना खिलाना शुरू किया है, तो हमने न्यूट्रीचार्ज DHA 50 mg बहुत छोटे कैप्सूल के फॉर्म में भी बनाया है, जिसको आप तोड़ें, उसका ऑयल आप खाने की चीज़ में मिक्स करें और आप उसे बच्चे को खिला सकती हैं। बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, थोड़ी सी चीज़ में मिक्स करके खिलाइए और उसके ऊपर आप दूध या कुछ भी उन्हें पिला दीजिए। तो 2 साल की उम्र तक आपको 1 कैप्सूल रोज़ देना चाहिए। अब क्योंकि आपके स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं तो 2 साल से 6 साल के बीच में अगर आपके बच्चे हैं तो आप 2 कैप्सूल्स यानी 100 mg दीजिए। वही आपको पूरा कैप्सूल नहीं देना है, आपको कैप्सूल को तोड़ना है और उसका ऑयल आपको किसी भी खाने की चीज़ में मिला करके देना है। और 6 से 12 साल की उम्र में 3 देने हैं। 12 साल से ऊपर आप न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का 1 कैप्सूल दे सकती हैं। अगर ये आपने देना शुरू किया, वेरी सून यू विल रियलाइज कि बच्चे का जो मेंटल पावर है, मेमोरी पावर बोलिए, कंसंट्रेशन बोलिए, चीज़ों को अपने अंदर ग्रैब करके, चीज़ों को अपने अंदर ग्रास्प करके वापस रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है।
तो ये 2 सप्लीमेंट्स हैं जो मैं फिजिकल ग्रोथ के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स व्हिच गिव्स यू प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल एंड फाइबर। मेंटल ग्रोथ के लिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए, दैट इज डीएचए का सप्लीमेंट, वो आपकी बच्चे की मेंटल ग्रोथ को एसरटेन करता है। तो ये दोनों अगर सप्लीमेंट्स आप शामिल कर लेंगे, और उसके अलावा ये जो कुछ चीज़ें हमने आज डिस्कस की हेल्थ को लेकर के, बच्चों की जनरल हेल्थ को लेकर के, अगर आप ये सब शामिल कर पाए उनकी डाइट में, उनकी डेली रूटीन में, आई एम श्योर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दी हेल्थ। बच्चों की हेल्थ एक्चुअली एक सेशन में सारी बातें करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे बच्चों की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस पे भी हम बात करेंगे, बच्चों की हम स्पेसिफिक स्लीपिंग पैटर्न्स पर हम बात करेंगे, मगर इसके लिए आगे के सेशंस में अगर आप लोग बात करना चाहें तो हम आगे के सेशंस में करेंगे ये बात। आज का वक्त, अब मैं थोड़ा सा वक्त, अगर गगनदीप मैम अगर कुछ लोगों पेरेंट्स के कोई क्वेश्चंस हैं जो वो आंसर चाहते हैं, तो या आपकी और कोई स्पेसिफिक आप कुछ पूछना चाहती हैं तो मैं बात करना चाहूँगी। Firstly, thank you, Manisha ma'am, for sharing such a valuable information. Thank you. Yes, from the behalf of our parents. So you shared valuable information regarding diet, sleeping habits, constipation. You told us that constipation, it is the root cause of all ills. Yes. And yes, and one thing I just want to share, like our kids are what we make them. Like you have Absolutely. shared this thing. Yes, yes. You Very have shared well this thing that, yeah, that parents, they should not use media, means 1 hour before and after sleep, right? So it should not be frequently used. Whatever we expect from our kids, firstly, we should be the role model. But the Absolutely. parents, we people, yes, we people, we become just habitual of using these devices. So how can we expect our kids to follow these things? So Very well firstly, said. we should drop this thing. Okay. So, and one thing more, I've heard regarding this, it's a quotation of Robin Sharma regarding exercise, that if you are not making time for the exercise, it means we are making time for the illness. So Absolutely. actually it's being happened. Yes. Thank you, Manisha ma'am. So I just got some questions from the parents. I don't Sure. have their particulars. So if you please allow, I will ask a common question from the parents. Sure. Like parents, they say the weight of their kids, yes, weight जो है उनका बढ़ता नहीं है बच्चों का. Even the kids, they take veggies, they take fruit. So what is the main reason behind that? कि बच्चे खाते हैं लेकिन बच्चों का जो weight है, weight नहीं बढ़ता उनका. Okay. So This is the common question. यस, सबसे पहले आई वुड लाइक टू से ये जो ऑब्सेशन है ना वेट के साथ हम लोगों का, ये सिर्फ इंडियंस में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा, बच्चा गोलू मोलू है या उसका वेट ज्यादा है तो वो हेल्दी बच्चा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप बच्चे की वेट के लिए बिल्कुल भी कंसर्न्ड ना हो। बच्चा अगर हेल्दी खा रहा है, बच्चे की अगर एक्टिविटीज बिल्कुल नॉर्मल हैं, बच्चा अगर पढ़ ढंग से पा रहा है, बच्चा अगर रोज पॉटी कर पा रहा है, बच्चा एक्सरसाइज कर पा रहा है, खेल पा रहा है, बच्चा अगर यूजुअली जितनी थकान होनी चाहिए उतनी ही हो रही है और ज्यादा फटीग की कंप्लेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब बच्चा इज हेल्दी। इवन इफ द बच्चा, आपकी नजर से बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा होगा, मगर वो बच्चा हेल्दी है। प्लीज वेट बढ़ाने के लिए आप उस पे ना तो खुद प्रेशर डालें और ना खुद प्रेशर लें। हाँ, आप कोशिश करें बच्चे की हाइट बढ़ती रहे। जो बच्चे ज्यादा, आप जब ज्यादा वेट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बच्चे की हाइट बहुत बार आई हैव नोटिस्ड कम रह जाती है, because either the body will grow like this or the body will grow like this. So you have to ensure that your body or the body of the child grows like this. So if you are concerned with the height, you should be concerned with the height. But if you're concerned with the weight, I will say अगर आपका बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी सब कर पा रहा है और किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करता, तो प्लीज बिल्कुल वेट के लिए कंसर्न मत होइए। हर बॉडी का अपना एक स्केलेटन होता है, हर बॉडी का अपना एक तरीका होता है, हर बॉडी अपने हिसाब से वेट मेंटेन करना जानती है। आप लोगों ने मैंने तो बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो पूरी तरह से वीगन हैं, मतलब नॉनवेज तो छोड़िए, दूध नहीं लेते, मीट नहीं, ऑयल नहीं लेते, घी नहीं लेते, कार्ब्स नहीं लेते, मगर फिर भी उनका वजन बढ़ा रहता है।
because body knows how much weight will it need to maintain itself. तो वो आप अच्छा खिलाइए, हेल्दी खिलाइए, अच्छे थॉट्स दीजिए। बच्चे का नेचर आप ऐसा बनाइए कि वो मस्त रहे। जो बच्चे बहुत ज्यादा क्रिप करते हैं, छोटी छोटी बातों पर जिनको टेंशन हो जाती है, और वो आपसे सीखा है उन्होंने, तो कोशिश करें कि बच्चे मस्त रहें, उनकी बॉडी अपने आप हेल्दी वेट मेंटेन कर लेगी। आप मुझे देख रहे हैं, आई एम 4'11", आई एम वेरी शॉर्ट, आई हैव ऑलवेज बीन ऑन अ लिटिल हेवियर साइड। माई सिस्टर ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे से 3 साल छोटी है, शी इज 5'3", शी हैज ऑलवेज बीन वेरी स्लिम थ्रू आउट, और मेरे ख्याल से खाना देखेंगे तो शी कुड प्रोबेबली ईट मोर देन व्हाट आई वुड ईट, मगर उसकी बॉडी उसके उसी वेट को सस्टेन करती है, मेरी बॉडी मेरे इसी वेट को सस्टेन करती है। तो ये सबका अपना अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है। आप फोर्स करके बॉडी को जबरदस्ती मोटा मत बनाइए। वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, यंग एज में आएंगे, बिल्कुल मतलब बहुत परेशान हो जाएंगे उस वेट को बाहर निकालने में वापस। तो प्लीज डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम। हाइट को लेकर अगर कंसर्न है आपका, तो प्लीज हाइट को लेकर, हाइट बढ़ेगी इसी वक्त, ये जो ग्रोइंग फेज है, 12 साल के बाद बॉयज की तो फिर भी बढ़ती है, प्यूबर्टी के बाद गर्ल्स की हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो आपके बच्चे अगर छोटे हैं और हाइट का अगर आपको बाय एनी चांस कंसर्न है, तो प्लीज उन्हें बास्केटबॉल खिलवाइए, उन्हें आप फुटबॉल खिलवाइए, उन्हें आप दौड़ाइए, उन्हें आप ताड़ासन करवाइए, लटकवाइए, उन्हें आप ये सब करवाइए ताकि उनकी हाइट बढ़े। हाइट के लिए कंसर्न होना चाहिए, वेट के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोड़ दीजिए, हेल्दी खाने दीजिए, हेल्दी सोचने दीजिए, हेल्दी जीने दीजिए, बॉडी अपने आप जितना वेट चाहिए उतना मेंटेन कर ले। Okay, thank you, Manisha ma'am. So I hope that the parents, they got satisfactory answer. Second query which we have, like Kanisha's mother. Kanisha, she's 4 years old. So mother, she wants to know that she says that Kanisha, she does not like to eat enough. This is again the common concern of the parents कि हाँ जी बच्चे खाते नहीं हैं. What should be done? Okay, सबसे पहले बच्चा क्या खाएगा, कितना खाएगा, ये डिसाइड आपको नहीं करना है, बच्चे को करना है। बच्चा जब आपने सुना होगा, जब आपकी बच्ची अभी 4 साल की जब बहुत छोटी रही होगी, तो शायद डॉक्टर्स ने आपसे कहा होगा कि हर बार रोने पे उसको दूध मत पिलाइए। दूध का टाइम होता है जब बहुत ज्यादा रोए, भूख लगेगी, या जब आपने अगर कंप्लेन किया हो कि बच्चा दूध नहीं पीता, तो आपको यही सुनने को मिला होगा, रोने दीजिए, जब भूख लगेगी तो अपने आप रोएगी और तब दूध पिलाइए। हमारी बॉडी बचपन से, जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से बात कर सकती है। हम सुनते नहीं हैं, हम अपना व्यू थोपते जाते हैं। तो अगर बच्चा बोल रहा है नहीं खाना है, फोर्स बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल फोर्स मत कीजिए। और स्पेशली पराठा, मैगी, अच्छा तुम्हें सपोज कीजिए सब्जी नहीं खानी, तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा चलो तुम ऐसा करो, हम पराठा बना देते हैं, मैगी बना के दे दूं, वो खा लोगे। द आइडिया इज नॉट टू फिल द स्टमक। आप कचरे से फिल करेंगे कि आप उसे खाली रहने देंगे, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर सोचिए, डस्टबिन आपके घर में अगर खाली नहीं होता है रोज, तो कितनी गंदगी उसमें रहेगी। अगर डस्टबिन ऑलरेडी भरा हुआ है और आपसे कहा जाए कि एक और डस्टबिन लाकर रख दिया जाए, आप क्या बोलेंगे, पहले वाला खाली कर दिया जाए। तो डस्टबिन पेट है, उसका डस्टबिन बिल्कुल मत बनाइए। बच्चा अगर हेल्दी नहीं खा रहा है तो उसको अनहेल्दी खाने का ऑप्शन बिल्कुल मत दीजिए कि तुम घर पे ये नहीं खा रहे तो चलो पिज्जा मंगवा देते हैं, तो बर्गर बना देते हैं, तो पकोड़े बना देते हैं, तो ये प्लीज आप ऐसा ना करें। बच्चे को आदत डालें, खाना है तो ग्रोथ के लिए ही खाना है, और समझा कर, डांट कर नहीं, जबरदस्ती नहीं। आपको बच्चों को समझाना होगा। एक बचपन में जब मेरा बेटा छोटा था, एक पॉपाई करके सीरियल आया करता था, और पॉपाई खाता था स्पिनच, पालक खाता था, और पॉपाई और स्पिनच दोनों की मतलब जोड़ी थी। जब उसको कुछ बड़ा काम करना होता था, तो वो एक टिन स्पिनच खोलता था और वो स्पिनच खाता था। तो मैंने अपने बेटे को समझाया कि ग्रीन कलर का फूड जो प्लांट से आता है, वो फूड जो है हमको बहुत स्ट्रांग बनाता है, फाइट करवाएगा जर्म से, फाइट करवाएगा, मतलब तुमको एबिलिटी देगा कि तुम किसी को भी पछाड़ सकते हो। तो ही अंडरस्टूड कि ओ आई हैव टू ईट ग्रीन फूड। तो उसको ग्रीन फूड खिलाना शुरू किया मैंने।
कच्चा खाना खिलाना शुरू किया मैंने, बातें करते करते, स्टोरीज के साथ, समझा करके, तो उसको पसंद आने लगा। मैंने ये कभी नहीं किया, अगर उसने ये बोला मैं करेला नहीं खाऊंगा तो आई हैव सेड देन डोंट ईट, देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग टू ईट। आज तुम मत खाओ, जब भूख लगेगी तो वही खाना, यही है। थोड़ी सी संस्कार आते हमें डालनी है। एक एक दो दो बच्चे होते हैं हमारे, तो हमें ऐसा लगता है पैम्पर करके हम बिल्कुल, मतलब ये नहीं खा रहा है, भूखा सोएगा मेरा बच्चा। भूखे सोने में कोई नुकसान नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। बच्चा अगर किसी दिन भूखा सो भी गया, बच्चे की बॉडी बेटर रिपेयर होती है अगर वो भूखा सोता है तो, क्योंकि उसका बॉडी डाइजेशन में काम में नहीं ले रहा है, उसकी बॉडी जो है हील कर रही है। तो एक आध दिन बच्चा अगर भूखा सो भी जाता है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इनफैक्ट उसकी बॉडी को फायदा ही होने वाला है। लेकिन बच्चा खा नहीं रहा है, पूरा नहीं खा रहा है, इसको लेकर के इतना परेशान मत होइए। बच्चे का खाने का टाइम फिक्स कीजिए, बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड और आइडेंटिफाई कीजिए कि बच्चे को क्या आप खिला सकती हैं। ये नहीं कि आपने ब्रेड के ऊपर जैम लगाया, बटर लगाया क्योंकि मीठा है, बच्चे को पसंद आया, आपने उसको दिन में 2-3 बार दे दिया। ऐसा ना करें। आप कोशिश करें, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप पैनकेक बना सकते हैं। मैंने शुरू किया था अपने बच्चे के लिए केला, उसमें थोड़ा सा आटा, मैदा नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा आटा, जस्ट वो बाइंडिंग इफेक्ट देने के लिए। केले को अच्छी तरह से मैश कीजिए, थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा बाइंडिंग इफेक्ट देने के लिए आटा डालिए, उसमें आप थोड़ा सा कोको पाउडर जो आता है वो डाल सकती हैं टू गिव दैट चॉकलेट वाला टेस्ट, और उसके छोटे छोटे पैनकेक्स बनाइए, कुछ अलग अलग शेप में बनाइए। उस बच्चे को आप शामिल कीजिए अपने, 4 साल की बच्ची है, आपके साथ बहुत सारी कुकिंग स्किल्स में शामिल हो सकती है। आज नया शेप बनाते हैं, आज ऐसा करते हैं, तो जो बनाएगी तो वो अपने आप खाएगी भी, कि चलो हम टेस्ट करते हैं कैसा लगा। उस पे आप थोड़ा सा चीनी की जगह उसमें आप थोड़ा हनी डालिए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा हनी स्प्रिंग डालिए और उसको आप खाना सिखाइए। उसके साथ थोड़ा आप बनाना, स्ट्रॉबेरी, कुछ और फ्रूट्स काट के सजाइए। आज हम सजाते हैं, फिर हम, तो ये दीज आर फन एक्टिविटीज जिसकी वजह से आपको खाने की जो इंटरेस्ट है वो बच्चों में बढ़ना चाहिए। फोर्स करने से बच्चा दूर भागता है। मेरा बेटा जीरा नहीं खाता, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतना परेशान हूं, मैं किसी भी सब्जी में जीरा नहीं डाल सकती। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि बचपन में जिस स्कूल में जाता था वहां पे उनको जीरा राइस खाने को दिया जाता था, और उनके यहाँ पे हम टिफिन नहीं भेज सकते थे। इट वाज अ भक्ति वेदांत इस्कॉन मिशन का स्कूल था, तो खाना बच्चों को नीचे बैठ के हाथ से खाना सबके लिए कंपल्सरी था, मदर्स को टिफिन नहीं भेजना अलाउड था। तो जीरा राइस शायद उसको पसंद नहीं आता था और फोर्सफुली खिलाया जाता था। तो मेरा बेटा चावल नहीं खाता, मतलब मैंने बच्चों को देखा नहीं, मेरे ख्याल से पहला बच्चा देखा है मैंने जो चावल नहीं खाता। और मेरा बेटा जीरा नहीं खाता, जिस सब्जी में जीरा होता है वो नहीं खाता, बोलता मुझे ऐसा लगता है इंसेक्ट्स चल रहे हैं। अब वो फोर्स फीडिंग जो स्कूल में हुई, अब मैं लाइफ लॉन्ग उस चीज को हटा ही नहीं सकती। तो मैंने जीरा सेक के पीस के रखना शुरू किया है कि मैं जीरा डालती जरूर हूँ बिकॉज जीरा इज वेरी न्यूट्रिशियस, पर मैं उसको अब पीस के सब्जी में डालती हूँ ताकि उसको पता ना चले कि जीरा डाला गया। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो बच्चे को आप किसी चीज को फोर्स मत कीजिए, मेक इट अ फन एक्टिविटी, मेक इट अ हेल्दी एक्टिविटी। आपका बच्चा अगर दिन में 3 बार खा लेता है, नाश्ता, लंच और डिनर 3 बार अगर खा लेता है, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। दिन भर में खाते रहना जरूरी नहीं है। और तो ये खाने को लेके जो हमारा ऑब्सेशन है ना, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। जब बच्ची को भूख लगेगी तब वो अपने आप खाना चाहेगी, पर जब वो खाना चाहे तो आपके पास हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए। आपके पास उस वक्त बिस्किट, नमकीन, मिठाई, सैंडविच, मतलब ब्रेड जैम, ये ऑप्शन मत दीजिए आप उन्हें खाने का। आप ऑप्शन दीजिए, ककड़ी खाएंगे हम, छील करके ककड़ी तोड़कर चबा करके खाएंगे, देखते हैं कौन कितनी जल्दी खत्म करता है। टू द काउंट ऑफ 10 लेट्स फिनिश ककड़ी, लेट्स फिनिश गाजर, लेट्स फिनिश अ चीला, लेट्स फिनिश अ न्यूट्रिशियस ड्रिंक। आप जूस बना के दीजिए, आप स्मूदी बना के दीजिए, इन्वॉल्व कीजिए बच्चे को साथ में। चलो हम संतरा छीलते हैं, देखते कौन कितनी जल्दी छीलता है, उसके बाद देखते कौन कितनी देर में कितना संतरा खा लेता है। दीज आर ऑल फन एक्टिविटीज। सो इस तरह से आप बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट खाने को लेकर के जगाइए प्लीज। That is what I have to say here. Yes, thank you, ma'am. So well said कि mothers are always with the substitution part कि ये चीज नहीं खानी तो चलो ये बना देते हैं। But parents का भी ये concern, parents का भी concern होता है। Mothers they say that we are working, हमारे पास we don't have enough time for all these things. But
If they want their child to be fit, they should follow this thing. Yes. Hanji, It all, hanji. you have to keep planning for these things. You cannot Yeah. say I'm working and that's why I will not do Yes, this. ma'am. Yes, ma'am. आप अपने Yes. बच्चों का ही नुकसान कर रहे हैं. So I am Hanji. working. I work like almost 18 hours a day. और 18. बच्चे Yes. किसी भी एज में न्यूट्रिशन तो चाहिए ही. सो आई हैव मेड हिम लर्न, मतलब वट एवर इज पॉसिबल. एयर फ्रायर भी लाकर रख दिया है, अवन भी रख दिया है, सब रख दिया है. एंड आई मेड हिम लर्न दैट यूज दिस. तो मैं आने से पहले उसकी बहुत सारी वेजीज काट के आती हूँ और मैं बोलती हूँ इसको प्लीज स्टीम कर लेना, या स्टीम करके आ गई तो उसमें तुम सीजन करके इसको खा लेना. सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू मेक द चाइल्ड लर्न दैट दीज आर योर बॉडी. इतना तो हमें अपने बच्चों के लिए करना है. Hanji. Yes, ma'am. And third query, last query we have, like mother, she says कि जो blood quantity of my child that is not increased, although child she eats green vegetables, कि जो उसका blood है वो नहीं बढ़ रहा, that is not increased. किसी रिपोर्ट, क्लिनिकल रिपोर्ट के बेसिस पे कह रही हैं कि अपनी उससे अंडरस्टैंडिंग से कह रही हैं, ये कुछ पता है आपको? No, ma'am, that I haven't got the full details. Like they have shared their concern only कि जो blood है वो नहीं बढ़ रहा. I hope that might, yes. Is it a girl? Ma'am, girl. Yes, yes, girl is there and she eats green vegetables a lot, but even then her blood that is not increased. Okay, so I believe if it's based on a clinical report, मतलब आपने लैब में अगर टेस्ट करवाया है और ब्लड नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये है कि उसका हेमोग्लोबिन लेवल अगर लो चल रहा है, ऐसा मैं समझ रही हूँ, जितना मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ. सो ब्लड नहीं बढ़ने का मतलब अगर आप हेमोग्लोबिन लेवल से बात कर रहे हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाते जाइए, बिल्कुल खाना ही चाहिए. और उसके साथ साथ आप कुछ और चीजें, जैसे आप खजूर खिलाइए, आप बीटरूट ज्यादा खिलाइए, आप जो है किशमिश बहुत खिलाइए, आप उसमें वेजिटेबल जूसेस बहुत दीजिए. और अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज एन अलार्म कि हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, क्लिनिकल रिपोर्ट ये कह रही है, देन आई थिंक यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर. कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी पल रही हो. यूजुअली बच्चों में हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता है. अगर आपका ये कंसर्न आया है और अगर क्लिनिकल रिपोर्ट की वजह से आया है, देन आई वुड सजेस्ट कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए एंड गेट हर इन्वेस्टिगेटेड अ लिटिल मोर. Okay, thank you, ma'am. And for the audience, I'm sharing the contact numbers. Like if you got any query regarding that drink or anything else you want to ask, so numbers that I'm sharing, yes, that is, please note down, please pen down the contact numbers. If you want to ask anything to our expert, Manisha ma'am, number is 9256213151. Second contact number which I'm sharing, that is 9041339108. Kuldeep, can we show these contact numbers on the screen by any chance? मैम अगर आप एक बार और रिपीट कर देंगी तो आई थिंक वी विल बी एबल टू try and Okay. Screen. Yes, ma'am. So contact numbers, yes, parents, if you have any query regarding the nutrition of your child, please pen down. Contact numbers are 9256213151. Second contact number which I'm sharing, that is 9041339108. So these are the contact numbers. If you want to ask anything, if you have any query regarding the nutrition of your child or any sleeping habit, you are free to ask. Yes, so numbers are displayed here. You can note down the number. Yes, ma'am, have you got anything else to share? Thank you so much. Or is much. it okay? Is it enough? Yes, for our parents. So once again, if we need to understand more about the exercises and other things for kids, we'll definitely love to do another session. Depends on the kind of feedback we get from the parents. Okay, so I hope that that the parents, they got valuable information, and I must thank our expert Manisha ma'am on the behalf of St. Xavier World, our honorable principal ma'am Gunwant ma'am,
our management. Thank you for being with us. Thank you, ma'am. Thanks a lot from all the parents. Thank you so much. Bye-bye. And I wish you all the best. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Bye-bye.